ਮਲਹਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ। ਗੁਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਉਪਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਸੋਈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਅੰਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਸੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ। ਤਜ ਕੂੜ ਕੁਟੰਬ ਹੋਮੇ ਵਿਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਚੱਲਣ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਲ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਜੀਣਾ ਸੱਚ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਣਾ ਝੂਠ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਚੱਲਣ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਲ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਬਸ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਰਹਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ, ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਦਾਮ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ। ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜੀਵ ਦਾ ਸਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਰਵਿਆ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗਾਈ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਭੇਦਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਭੇਦਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਖ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਜਪੀਏ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਆਪੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਜਪੀਏ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੰਗ ਧਨੁਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਪੇ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਜੇ ਸਾਰੰਗ ਧਨੁਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਆਪ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਮਾਇਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ। ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਮਾਇਆ, ਮਨ ਹੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਮਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਸੋਚਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਚਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੱਚ, ਸਾਚੇ ਹੀ ਸਾਚ ਭਤੀਜੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਭਤੀਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਭਤੀਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਏਕੋ ਏਕ ਵਸੇ ਮਨ ਸੁਆਮੀ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਸ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੈ ਮਨ ਸੁਆਮੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਮੀਠਾ, ਜਗ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਗ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਗ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਉਹ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਕੋ ਦੁਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਨਾਰਾਇਣ ਸੋਈ। ਲੰਕਾ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਭਾਰਾ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ ਹੈ ਲਛਮਣ ਔਰ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ। ਬੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਛਮਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਛਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਹੈ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਘਨਾਥ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਮੇਘ ਬੱਦਲ ਗਰਜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੇਘਨਾਥ, ਵੀ ਬੱਦਲ ਵਰਗਾ ਗਰਜਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
लक्ष्मण आशीर्वाद लैन आए ने। भगवान राम ने नज़र भर के देखा लक्ष्मण इस शेषनाग के अवतार ने, फुंकारे मारते ने, क्रोधी सुभाव है। भगवान राम कहने लगे जाओ लक्ष्मण पहले भिक्षा मंग के लियाओ। हनुमान जी खड़े ने, बाकी सारे खड़े हैरान लगे एकदम, भगवान राम की बोल रहे ने। लक्ष्मण कहते भिक्षा लैके आ। लक्ष्मण भी कुछ हैरान जे हुए भी मैं तो आशीर्वाद लैन आया, मेरा मेघनाद नाल युद्ध है, तैयार होके आया, मैं तीर कमान सब सजा के आया, अस्त्र शस्त्र सजा के मैं युद्ध के मैदान जाने वास्ते आया। और भगवान राम कहते जाओ भिक्षा मंग के लियाओ। हुक्म है। चले गए लक्ष्मण, सेना सजदी पी सारे पासे, अगे दौड़िया जा रहा है रावण का सैनिक। लक्ष्मण एकदम खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहते कोई भिक्षा दे दो, नहीं तो देख के दुश्मन का सिपाही मार देंदा। रुक गए, वो सिपाही भी रुक गया। कुछ उसने जो भोजन नाल रखिया खाण वास्ते युद्ध के मैदान दे विच, जिन्हें भी फौजी दस्ते ने नाल रखते हैं कुछ समान खाण पीण का, नहीं तो छोले ही रख देंगे ने भी उत्थे भुख लगी तो की खाना, युद्ध मैदान युद्ध चलता पे, तो जो कुछ अपने जेब च रखा वो खाते हैं। पहले जो रखा है वो भी इसने लक्ष्मण को दे दिता कुछ सिख। लक्ष्मण भिक्षा लैके आए, भगवान को अर्पण कर दी। लो प्रभु, बड़ी श्रद्धा प्रेम नाल जब मत्था टेक के उन्हें भिक्षा दी भगवान राम न, भगवान कहते विजय भवा, आशीर्वाद देता विजय का। लक्ष्मण आशीर्वाद लैके चले गए युद्ध मैदान से। बड़ा भारी अज युद्ध संग्राम है, क्योंकि युद्ध है दो बड़े बड़े योद्धियां का। लक्ष्मण जती ने और सामने मेघनाथ खड़े जिन्होंने इंद्र देवता को हरा के जित के बन के लिया सी, त्रिलोकीनाथ ने, जिस करके इंद्रजीत का खिताब दिता गया मेघनाथ को। मेघनाथ जब पकड़ के लिया सी, मेघनाथ इंद्र देवता ने पकड़ के लिया, उसलिए फिर ब्रह्मा जी आए छुड़ाने वास्ते भी ये देवतियां का राजा है, तुसीं इत्थे लियाए, उत्थे दी व्यवस्था किदां चलेगी? राजा भी ना प्रजा थोड़ी चलती। कहता मैं इन्हूं बन के लियाया, हरा के लियाया। ब्रह्मा जी कह लगे तैनूं इस करके असीं इंद्रजीत कह देंगे, तो इंद्र नूं जीत लिया, इन्ना काफ़ी है, इसनूं तुसीं आज़ाद कर दो। इंद्र नूं छड्ड दिता गया देवराज इंद्र ने, और मेघनाथ का नाम रखा गया इंद्रजीत। इंद्र देवता ने भी जित लिया इसने। इन्ना बड़ा योद्धा है जिहड़ा बड़े देवता के राजा ने भी हरा के आया, और बड़ा भारी हंकार है अपनी ताकत का। फिर अपने मैदान का भी हंकार होंदा भी साडे देश युद्ध है, भी सानू सब सुलभ ने, जो भी सानू जरूरत ने वो सब मिलती ने। ये बाहरों आए ने, इन्हों सुलभ नहीं है हर चीज़। युद्ध हो गया शुरू, और बड़ा भारी जदों युद्ध होया तो हुण इंद्रजीत यानी मेघनाथ ने अपने अमोघ अस्त्र इस्तेमाल करने शुरू कर दिते। जिहड़ी जिहड़ी ने शक्तियाँ प्राप्त की ने लक्ष्मण नूं मारनी शुरू कर दी। ब्रह्मस्त्र है, उसका नारायण अस्त्र है, भगवान शंकर दी दित्तियां शक्तियां ने, और इसने प्रयोग करते सब। जो ने ब्रह्मस्त्र चलाए, धरती सारी अगनमय हो जाती। उसलिए शक्ति आई, लक्ष्मण ने नमस्कार कर दी, हाथ जोड़ के मत्था टेक दिता, आशीर्वाद दे के चल गई शक्ति। क्यों बड़ा बंदा आवे, नमस्कार करो तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। आकड़ के खड़ा है तो समझो उसकी दुर्गति का समा आ गया, क्योंकि गुरुओं के अगे बड़िया अगे खड़ा होकर नमस्कार करनी होंगी। तो उस तरह ही लक्ष्मण ने किया।
शक्ति आ रही, नारायण अस्त्र आए। उस लक्ष्मण ने फिर नमस्कार की, हाथ जोड़ के मत्था टेकता। शक्ति आंदी, अमोघ शक्ति इन्होंने कहा जाता है, जिहड़ी कि लक्ष्य ते जाए वो विनाश किए बिना वापस नहीं होंदी। लेकिन वो अगों मत्था टेक देंगे, शक्ति आशीर्वाद दे के वापस चल गए। और हुण लक्ष्मण जी ने तीर मारिया, भगवान राम नू मुख रख के जय श्री राम करके तीर मारिया। लेकिन मेघनाथ आकड़ के खड़ा, हसन लगा को ये की करेगा मेरा, मैं इंद्रजीत हाँ, मेरा की बिगाड़ लेगा। मन च हैरानी बड़ी है, इन्हें अमोघ अस्त्र में मारे, लेकिन लक्ष्मण का उन्हें कुछ बिगाड़िया नहीं। कौन है लक्ष्मण, जिहड़ी इन्नी शक्तियां का अगों सामने खड़ा होकर मुकाबला करता है। वो शक्तियां के सामने घूम के वापस आ गई। मेघनाथ हसदा पे अगों भी इसकी शक्ति ने मेरा की बिगाड़ लेना, क्योंकि मेरा पिता कहता बनवासी छोकरे ने, घरों कढ़े हुए बनवासी छोकरे ने, साडा की मुकाबला कर सकते हैं। जो दुर्योधन कहता होंगे भगवान कृष्ण ग्वाल है, उस रावण भी भगवान राम को कहते बनवासी छोकरे ने। और हुण वो तैश है खड़ा मेघनाथ, ज्यों तीर गया सिर कट के उन्हें अलग कर दिता। उत्थे ही मेघनाथ के प्राण पखेर उड़ गए, हाहाकार मच गई सारी सेना च। मेघनाथ मारिया गया, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं मनता सी, रावण भी नहीं मनता। लेकिन जो देखा तो सचमुच मारा गया। युद्ध समाप्त तो डंका बज गया, बड़ा भारी जोरदार। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का अंत कर दिता। सारी सेना बड़ी खुशी मना रही है, बांदर सेना खूब नचते पे ने। वापस आए शाम का समय, भगवान राम अपने उसी तरह पूजा च बैठे ने, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। और ये भी बड़ी विचित्र गल, दोनों एक दूजे की पूजा करते। जदों रामेश्वरम दे विच भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की, पूछा प्रभु इसका नाम, कहता रामेश्वर, रामेश्वरम नाम है इसका। मतलब की होया, कहते राम दे ईश्वर ने भगवान शंकर। राम जी समझा रहे हैं सब ने। और ये दृश्य कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती ना देख रहे ने। माता पार्वती पूछते ने रामेश्वरम इदा नाम, इदा मतलब की होया? भगवान शंकर कहते इदा मतलब होया राम ही मेरे ईश्वर ने। दोनों बखरा मतलब कढ़ते हैं। भगवान शंकर कहते ने वह मतलब होया राम ही मेरे ईश्वर ने। तो भगवान राम ने पूछा, वो कहते राम दे परमेश्वर ने, रामेश्वरम। पूजा करके भगवान राम निवृत्त होए। सारी सेना बैठी खुशी मना रहे ने। हनुमान जी का मन सवेर का ही सवाल चलता पाया भी लक्ष्मण जदों आशीर्वाद लैन आए, भगवान राम कहते जाओ भिक्षा लैके आओ। मतलब नहीं समझ आया सन वजह तक कोई भी। युद्ध मैदान च जान वास्ते भिक्षा लैके आओ, किस तरह के नाल गल बनी? भगवान राम ने हनुमान जी ने पूछ ही लिया फिर भी प्रभु सवेर का मेरे मन से सवाल चलता पाया। आपने जदों आशीर्वाद लैने लक्ष्मण जी आपने कहा भिक्षा लैके आओ, इस गल की समझ नहीं आई। भगवान राम कहते मेरा भराता है शेषनाग का अवतार लक्ष्मण क्रोधी साहब है। युद्ध मैदान दे विच जिथे वीरता युद्ध क्रोध चाहिए, उत्थे विनम्रता भी चाहिए। तो मैं कि कला क्रोध ही ना उत्थे इस्तेमाल करे, विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता आती है जदों चुक के कोई चीज़ मंगी जाती, क्रोध नाल नहीं कोई मंग सकता। जब मंगना होए तो विनम्रता नाल बेनती करती जाती भी यह चीज़ दे दो। क्रोध नाल चीज़ खोई जाती है, मंगी नहीं जाती।
तो मैनूं पता सी इहदा क्रोधी सुभाव है। उत्थे मेघनाथ ने अमोघ अस्त्र इस्तेमाल जरूर करने ने, कि उन्होंने त्रिलोकी की परवाह कोई नहीं, भावें संसार सड़ जाए, डुब जाए, कुछ भी हो जाए। तो यह मतलब पता सी उन्हें अमोघ अस्त्रां का इस्तेमाल करना जिहड़ा कि सारे संसार नूं गर्क कर सकते हैं। ऐसे अस्त्र वो चलाएगा। उन्हें अगे निम्रता होंदी, हाथ जोड़ के मत्था टेकना होंदा। तो जे इन्हें क्रोध किया वो अगे तो विनाश हो जाएगा। लेकिन इसने विनम्रता सिखाई सी भी जा मंग के लिया भिक्षा, ताकि विनम्र होकर भी युद्ध मैदान चढ़न, सिर्फ क्रोध नहीं धारण करना। तो ये समझ गया लक्ष्मण। और जदों उसने अमोघ अस्त्र इस्तेमाल किए तो लक्ष्मण ने मत्था टेकता नमस्कार कर दी, जिस करके वो अमोघ अस्त्र इसनों आशीर्वाद दे के चले गए। और जदों लक्ष्मण जी ने तीर मारिया मेघनाथ नूं मेरा नाम लैके, और वो मेघनाथ हसन लग पिया भी ये राम की शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने इस गल दा हसी आ गई कि राम का नाम लैके तीर चलाता भी मेरा राम की कर सकता। तो अगर वह विनम्र हो जाता उसले वो भी, तो मैं उन्होंने माफ़ कर दिंदा। लेकिन वह विनम्र नहीं होया, सगों उसने मजाक बनाता, हस पिया को भी राम का नाम मेरा की कर लेगा, जिस करके उसका सिर कटिया गया। अगर वो लक्ष्मण वर्गा विनम्र हो जाता, मत्था टेक दिंदा, तो मैं भी उन्होंने क्षमा कर दिंदा। ये सारी इन्नी गूढ़ी गल सारी सेना बड़े ध्यान नाल सुन ली है भी जिथे कितनी भी ताकत होवे, विनम्रता ना होवे, उहदा नाश हो जाता। सारी शक्तियां का मालिक बनया मेघनाथ, इन्नी शक्तियां उस कोल हासिल ने, लेकिन जदों केवल कठोरता ही है, विनम्रता है नहीं, उस करके फिर उसका विनाश हो गया। इस करके महाराज फरमाने कि गुर सालाही सदा सुखदाता, प्रभु नारायण सोई। वो नारायण ही है जिहड़े सारी सुखां दा दाता है। और गुरु की किरपा नाल उहदी सलाघा की जाती, उपमा की जाती है। गुर प्रसाद परम पद पाया, वड्डी वड्याई हुई। गुरु ने किरपा की सी वशिष्ठ महाराज ने भगवान राम नूं सारिਆਂ नूं समझाया सी विनम्र रहना चाहिए। वशिष्ठ महाराज आप बड़े विनम्र ने, बिल्कुल शांत रहने वाले। विश्वामित्र जी ने 100 पुत्र मारता वशिष्ठ महाराज। हर बार जाते सन इस इच्छा के नाल कि मैनू ब्रह्म ऋषि बोलिया जाए। लेकिन वशिष्ठ महाराज नूं हर बारी राज ऋषि बोलते सन, आओ राज ऋषि, क्योंकि उन्होंने इच्छा सी कि मैनू कामधेनु गऊ प्राप्त होवे। ब्रह्म ऋषि कामधेनु नूं प्राप्त होंदी, ब्रह्म ऋषि जिहड़े होण उन्हां नूं कामधेनु गऊ प्राप्त होंदी। तो इस वशिष्ठ महाराज कोल सीगी, ये भी चाहते सन कि बड़ी भारी तपस्या नालों प्राप्त होंदी। बड़ी भारी तपस्या की विश्वामित्र जी ने, 1000 साल तप किया और बिना कुछ खाते पीते तप किया। ऐसी कठोर अवस्था प्राप्त हुई। भगवान ब्रह्मा जी प्रगट हुए, कहने मैनू खिताब दो ब्रह्म ऋषि का। ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो केवल वशिष्ठ महाराज देंदे ने, वशिष्ठ महाराज नूं जाके बेनती करो, वो तुहानूं ब्रह्म ऋषि का खिताब देणगे। पता चलिया हो वशिष्ठ महाराज ने काम करना सी। वशिष्ठ महाराज को चले गए कि राजे ने अस्त्र शस्त्र धारण किए ने। वशिष्ठ महाराज को गए, मिले। वशिष्ठ महाराज कहते आओ राज ऋषि। बड़ा गुस्सा चढ़िया उन्हें, मैं तो ब्रह्म ऋषि सोच के आए, मैनू बोलणगे भी बड़ा भारी तप किया। आओ ब्रह्म ऋषि, इन्हें सबनों पता सी आकाश धुआं छा गया, इन्ना भारी तप किया, आकाश बिल्कुल हनेरा हो गया। इन्नी तपस्या की विश्वामित्र जी ने, और मैं ब्रह्म ऋषि का खिताब लैन आया। उन्होंने राज ऋषि कह दिता।
ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਗਏ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 100 ਬੇਟੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ। और एक बार छिप के आए, फिर हल्का सादा जा भेष, और वशिष्ठ महाराज की कुटिया के पीछे खड़े हो गए कि मैं सुना ये मेरे बारे की बोलते हैं, 100 पुत्र मारता मैं इन्हों का, की बोलणगे। अज पूर्णमाशी का दिन है, बड़ी सुंदर हल्की हल्कियां रोशनियां चंद्रमा दी आ रही ने उन्होंने कुटिया च। एक कुटिया के पिछे खड़े हो गए विश्वामित्र जी सुन रहे हैं अंदर की बोलते हैं। अरुंधति पत्नी ने वशिष्ठ महाराज की कहने लगे, देखो कितनी सुंदर छटा है चंद्रमा की, ऐसा तेज ऐसा प्रकाश किसी का है अज? और वशिष्ठ महाराज ने हाँ विश्वामित्र जी का है, उन्हें तपस्या का तेज ऐसा ही है। विश्वामित्र सुन के हैरान रह गए, मैं इन्हों का 100 पुत्र मारता, ये मेरी उपमा करते पे ने। बड़े हैरान है विश्वामित्र, जिसनों जरा जा बुरा भी कह दिता जाए तो उसकी बुराई करता है, उन्होंने गालां कढ़दा, तो इत्थे 100 पुत्र मार दिता। तो सगों वो विश्वामित्र जी महिमा करें जी, ऐसी छटा, ऐसी तेज किरणा, ऐसा प्रकाश इस वे संसार च विश्वामित्र जी का है। इन्नी घोर तपस्या उन्होंने की। एकदम सामने आ गए, हाथ जोड़ ले, कहते आओ ब्रह्म ऋषि। वशिष्ठ महाराज ने एकदम कहते आओ ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जी हाथ जोड़ के कहते अगर आप पहले मैनू ब्रह्म ऋषि कह देंगे मैं तुहाडा 100 पुत्र ना मारदा। मैं इस इच्छा नाल आया सी, तुहानू पता सी, मैं इस इच्छा नाल आना तुहाडे कोल कि मैनू ब्रह्म ऋषि बोलो, और आप मैनू हर बारी राज ऋषि बोलते स। वशिष्ठ महाराज कहणगे तुहाडा पहरावा ही राज ऋषि वाला हुंदा सी, तुसीं अस्त्र शस्त्र सजा के मुकुट लगा के मेरे को आंदे स, वो राज ऋषि का खिताब हुंदा। जिहड़े ऋषि वर्गी तपस्या करे और राजा होवे, और अस्त्र वस्त्र वो राजियां वर्गे पहने, तो उन्होंने राज ऋषि कहा जाता है। तो जदों उन्हें अस्त्र शस्त्र त्याग करते सादा वेश धारण कर लिया, वो हुंदा ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र ने बड़ा ही पश्चाताप, हो गलती मेरी सी, इन्हों ने मैं क्रोध करता रहा, क्रोध करके मैं इन्होंने पुत्र मारता रहा, माफी मंग लिखता और खिताब दिता ब्रह्म ऋषि का वशिष्ठ महाराज ने। ये वशिष्ठ महाराज और विश्वामित्र दोनों गुरु ने भगवान राम दे। वशिष्ठ महाराज तो इन्होंने शास्त्र विद्या सीखी और विश्वामित्र जी तो शस्त्र विद्या सीखी, और इस करके दसते ने भगवान भी सानू भी गुरु धारण करने पैंदे, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। बेशक अवतार ने लेकिन फिर भी गुरु धारण किए ने। भगवान राम के 2 गुरु ने, कृष्ण भगवान के 3 गुरु ने। उन्होंने कुल गुरु गर्गाचार्य भी है, और संदीपन ऋषि तो उन्होंने शास्त्र की विद्या सीखी, और शस्त्र विद्या दुर्वासा ऋषि तो सीखी। ऋषियों मुनियों ने इन्ना मान इज्जत देंगे ने भगवान कि उन्होंने अपना गुरु बनाते हैं। इस करके महाराज कहते हैं गुरु सलाही सदा सुखदाता, प्रभ नारायण सोई, गुर प्रसाद परम पद पाया, वडी वड्याई होई। अंदिन गुण गावे नित साचे, सच समावे सोई, मन रे गुरमुख हृदय विचार। तज कूड़ कटम हो में बिख तृष्णा, चलन हृदय समा। बस ये सोच ले अज नहीं कल मरना ही है, और इसकी तैयारी रखनी है, कदों मौत आवे कोई पता नहीं होता। गुरु सलाई सदा सुखदाता, प्रभ नारायण सोई। तज कूड़ कुटम हो में बिख तृष्णा, चलन हृदय समाल। सदगुरु दाता राम नाम का, होर दाता कोई नहीं। कि कोई दाता है राम, सदगुरु दाता राम नाम का। ये राम नाम ही है, राम ही है जरा दाता है,
सब देण वाला। होर दाता कोई नहीं, कहते होर कोई दाता ही नहीं। सतगुर दाता राम नाम का, होर दाता कोई नहीं। तो इस तरह के नाल परमेश्वर की शरण जिहड़ा जांदा ते उही किरपा प्राप्त करता है। तो जदों किरपा हो जाती है तो गुरुदेव की मेहर होंदी है, परमात्मा का मिलाप होंदा। परमात्मा की किरपा होंदी तो गुरु मिलते हैं, गुरु की किरपा होए तो परमात्मा के दर्शन होंदे ने।